হ্যালো দর্শক বন্ধুরা, স্বাগতম আমার এই নতুন ব্লগে। এই সিরিজে এটা আমার দ্বিতীয় ব্লগ। আমি এখন বেরিয়েছি বুদ্ধগয়ায় সাইট সিন করতে। এর আগের ব্লগেই আমি দেখিয়েছি যে আমি কলকাতা থেকে কোন রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বুদ্ধগয়া এসেছি। আর এখন ঘড়িতে 4:30 বাজে। আমরা সাইট সিন করতে বেরিয়েছি বুদ্ধগয়াতে। বুদ্ধের এই মূর্তিটি 80 ফুটের মতন উঁচু। এটি বুদ্ধগয়ার অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। 1989 সালে 14তম দালাই লামা এই মূর্তিটির উদ্বোধন করেছিলেন। এই মূর্তিটি নির্মাণের তত্ত্বাবধানে ছিলেন জাপানের ডাইকিজো সম্প্রদায়। গণপতি সতপতি ভারতের প্রসিদ্ধ আর্কিটেকচার এই মূর্তিটির আর্কিটেক্ট করেছিলেন। এখানে বুদ্ধদেব বসে আছেন কমলের ওপরে। এই মূর্তিটির চারপাশে বুদ্ধদেবের শিষ্যদেরও মূর্তি রাখা আছে। প্রতিটি শিষ্যের মূর্তির নিচে তার নাম লেখা আছে। যেমন এই মূর্তিটির নিচে লেখা আছে মহাকাশ্যপা। আমরা এখন বুদ্ধের মূর্তির চারদিকে প্রদক্ষিণ করছি। বুদ্ধ মূর্তির দুপাশে মোট 10 জন শিষ্যের মূর্তি আছে। এই স্থানে বুদ্ধদেব বসে আছেন ধ্যানমগ্ন হয়ে। এরপরে আমরা দেখতে গেলাম দাইজোকো বুদ্ধিস্ট টেম্পল। (1983 সালে তৎকালীন ভারতের প্রেসিডেন্ট জ্ঞানী জৈল সিং এই মন্দিরটির উদ্বোধন করেছিলেন। এই মন্দিরের শান্ত পরিবেশ পুণ্যার্থীদের আকর্ষণ করে। এই মন্দিরে ফটো তুলতে কোনো রকম বাধা নিষেধ নেই। এইখানে বুদ্ধের মূল 3টি মন্ত্র লেখা আছে। এরপরে আমরা গেলাম কর্মা টেম্পলে। আমরা যেই পরপর 3টে জায়গা গেলাম সেই 3টে জায়গায় পাশাপাশি। এখানে টোটো করে খুব সহজে এই জায়গাগুলো ঘোরা যায়। গাড়ি নিয়ে আসলে জায়গায় জায়গায় রেস্ট্রিকশন বা রোড ক্লোজার আছে, যেখানে কিনা গাড়ি অনেক সময় ঢুকতে দেয় না। একটি টোটো ভাড়া করে যদি সাইট সিন হিসাবে বুক করে পুরো বুদ্ধগয়া ঘোরা যায়, তাহলে বার্গেনিং করে 350 থেকে 400 টাকার মধ্যে পুরো বুদ্ধগয়া ঘোরা যায়। এই মন্দিরটা খুবই সুন্দর। এই মন্দিরের প্রবেশপথের 2 দিকে 2টি সিংহের মূর্তি আছে। এই মন্দিরটি হলো কর্মা মন্দির বা করমাপা মন্দির। তিব্বতীয় ধর্মগুরুকে করমাপা বলা হয়। এই মন্দিরটির উদ্বোধন করা হয় 1988 সালে। আমরা এখন মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করছি। ভেতরটা খুবই সুন্দর করে সাজানো। দেওয়ালে এবং থামের গায়ে চিত্র অঙ্কন করা আছে। মন্দিরের ভেতরটা ভীষণ শান্ত এবং শান্তিপূর্ণ জায়গা। এখানে ক্যামেরা নিয়ে ফটো তুলতে কোনো রকম বিধিনিষেধ নেই। এই মন্দির প্রাঙ্গণের ডান দিকে একটি স্তূপ নির্মিত আছে। এই মন্দিরটির
চারদিকে রং এবং কারুকার্য খুবই সুন্দর। আমরা এখন এসেছি থাই মনেস্ট্রি দেখতে। 1956 সালে থাইল্যান্ডের সরকার এই থাই মনেস্ট্রিটি তৈরি করেন। তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এই মন্দিরটি তৈরি করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এই মন্দিরটি হচ্ছে ভারতে একমাত্র থাই মনেস্ট্রি। আমরা এখন মন্দির প্রাঙ্গণ দিয়ে হেঁটে মূল মন্দিরের কাছে যাচ্ছি। এই মনেস্ট্রিটা দেখতে অনেকটা ব্যাংককের মনেস্ট্রির মতন। চলুন আমরা এই মনেস্ট্রির ভেতরটা দেখে নিই। এইখানে সকালবেলায় এবং সন্ধেবেলায় মেডিটেশনের ক্লাস হয়। প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে এইখানে যোগা এবং মেডিটেশনের প্রশিক্ষণ হয়। এই মনেস্ট্রির ভেতরটা খুবই সুন্দর। এই মন্দিরটি প্রতিদিনই সকাল 7টা থেকে বিকেল 6টা পর্যন্ত খোলা থাকে। এই মন্দিরে ক্যামেরা বা মোবাইল দিয়ে ছবি তুলতে কোনো রকম বাধা নিষেধ নেই। আমরা এখন এসেছি মূল মহাবোধি মন্দিরের সামনে। আমরা এখানে এসে একজন গাইড নিয়েছি। সেই গাইড আমাদেরকে এই মন্দিরের ইতিহাস সম্বন্ধে বলবে। देखिए, जिस मंदिर में आप देखने के लिए जा रहे हैं, इसको हम कहा जाता है कि यहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति मिला है। गौतम बुद्ध के समय में ये पूरा जंगल होता था। जंगल का नाम था उरुबेला जंगल। जब उनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति मिला, इस जगह का नाम पड़ा बोध गया सर। मंदिर का बैक साइड में एक पेड़ है जिसके नीचे में बोधि वृक्ष कहते हैं, पीपल का पेड़ है। उसके नीचे में गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला और ज्ञान मिलने के बाद वो बुद्ध बने। जगह का भी नाम पड़ा बोध गया। उसके बाद उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में अलग अलग प्लेसेस में उन्होंने 7 वीक मेडिटेशन किए, 7 सप्ताह ध्यान किए। हम लोग मंदिर के अंदर में जब जाएंगे तो 7 प्लेसेस जहाँ पे वो बैठ कर वो मेडिटेशन किए हैं और जहाँ पे लोगों को टीचिंग दिए हैं उसके बारे में जानेंगे, उसको देखेंगे, प्लस में मंदिर का बेसिक पॉइंट समझेंगे। अभी थोड़ा सा मैं गौतम बुद्ध का कुछ पीछे उनका कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है कपिल वस्तु में, वहाँ पर उनका जन्म स्थान था। और उसके बाद में उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में 29 ईयर्स का एज में उन्होंने राजपाट को ब्रेकअप कर लिया था। और उसके बाद में उन्होंने 6 ईयर कंटिन्यूस उन्होंने ट्रैवलिंग किए, सफरिंग किए। और उसके बाद में 35 ईयर्स का एज में ये फॉरेस्ट में पहुँचे, उरुबेला फॉरेस्ट में पहुँचे। और उसके बाद में ट्री के नीचे में बैठकर उनको ज्ञान की प्राप्ति मिला और वो बुद्ध हो गए। तो जो भी अब इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो मंदिर के अंदर में दिया जाएगा। अभी मैं मंदिर का बेसिक बता रहा हूँ। साइड में बोधि ट्री के नीचे में उनको ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में 7 वीक स्पेंड किए, 7 वीक मेडिटेशन किए। 7 वीक में यहाँ पे 5th वीक यहाँ पे गौतम बुद्ध मेडिटेशन कर रहे थे। यहाँ पे एक बैंयन ट्री होता था, बट वृक्ष होता था, वो आंधी वर्षा से गिर गया। सम्राट अशोक का पीरियड में एक पिलर बना दिया गया। ये 2300 ईयर्स ओल्ड पिलर है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 5th वीक यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने 2 ब्राह्मण, जो हमारे ब्राह्मण समाज के कुछ बच्चे थे, भगवान बुद्ध को यहाँ बोले मैं ब्राह्मण हूँ। तो भगवान बुद्ध ने उसके प्रश्न के उत्तर में रिप्लाई किए
कोई भी इंसान मनो जन्म से ब्राह्मण नहीं होते, कर्म से ब्राह्मण होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 5th वीक यहाँ पे स्पेंड किया गया। इसको आप टच कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है, इसको हम बौद्ध स्तूप कहते हैं। ये बौद्ध स्तूप का अर्थ होता है ना सर, कि पहले हम लोग बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं करते थे। बोधि ट्री भगवान बुद्ध का फुटप्रिंट्स का पूजा करते थे। और पहले के समय में जो बौद्ध मॉन्क्स होते थे ना, भिक्षु होते थे ना, वो मनोकामना मांगते थे। मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद एक ऐसा बौद्ध स्तूप बना देते थे। ऐसे छोटे बड़े इस कॉम्प्लेक्स के अंदर में 485 बौद्ध स्तूप बना हुआ है। 2nd वीक वहाँ पे स्पेंड किए थे। छोटा सा जो मंदिर देख रहे हैं ना, वो टॉप पे वो मंदिर बंद है। उसका हिस्ट्री है ना, वहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 2nd वीक वहाँ से खड़े होकर, स्टैंडिंग होकर और विदाउट अपना आइज को क्लोज किए हुए, आँख को बंद नहीं करते थे। और मंदिर के पीछे में जो ट्री है जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति मिली, वहाँ से खड़े होकर कंटिन्यूस बोधि ट्री को कॉन्सनट्रेट कर उसको रिस्पेक्ट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उनको ज्ञान मिला था। और 2nd वीक वहाँ पे स्पेंड किए। मंदिर का पॉइंट पे आता हूँ, बाबू आप लोग आगे जाओ। मंदिर का पॉइंट पे आता हूँ। मंदिर का टॉप पे सोना लगा हुआ है, और सोना जो देख रहे हैं वो टॉप पे 289 kg गोल्ड लगा हुआ है। और 289 kg जो गोल्ड लगा हुआ है, और थाईलैंड का किंग ने 12 नवंबर 2013 को 10 ईयर्स पहले, जिसका नाम था भूमि बॉल, उन्होंने 289 kg गोल्ड टेम्पल का टॉप पे डोनेट किए थे। मंदिर का नाम है सर महाबोधि मंदिर। ये महाबोधि मंदिर का अर्थ होता है कि जिसके नीचे उनको ज्ञान मिला गौतम बुद्ध को, इसलिए महाबोधि मंदिर कहते हैं। इस मंदिर को सम्राट अशोक राजा ने बनाया। जो पहला फ्लोर देख रहे हैं जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, 2nd फ्लोर पे ग्लास विंडो लगा हुआ है, वहाँ तक सम्राट अशोक राजा ने मंदिर को 3 सेंचुरी BC में बनाया था। ये टेम्पल लगभग 2300 ईयर्स ओल्ड है। उसका ऊपर का 2nd फ्लोर जो है 150 फीट समुद्रगुप्त राजा ने बनाए थे। ये टेम्पल का हाइट बॉटम टू टॉप 180 फीट हाइट हो गया सर। मंदिर बनने के बाद 12वीं सेंचुरी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आ गए, जो अफ़गानिस्तान का रहने वाले थे, और उन्होंने ये मंदिर पर अटैक कर दिए ब्यूटीफुल मंदिर में। और ये मंदिर का जो पहला फ्लोर जो अशोक ने बेस किया था, ये मंदिर को 30 फीट ब्रोकन कर दिया। और ब्रोकन करने के बाद 30 फीट का लेवल से चारों तरफ इस कॉम्प्लेक्स को मिट्टी बालू से क्लोज कर दिया। ये टेम्पल 12वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक 600 ईयर्स कंटिन्यू ये मंदिर मिट्टी में बंद रहा। 1880 में यहाँ पे एक इंग्लिश मैन आया जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, और कनिंघम ने इस मंदिर को चारों तरफ खुदाई किए और ये मंदिर को फिर से बनाया गया। पहला फ्लोर पे काम किया गया। ये मंदिर का इतिहास मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब आगे बढ़िए। गेट है सम्राट अशोक राजा ने बनाया, 2300 ईयर्स ओल्ड है। साइड का पार्ट है ना, वो लेफ्ट साइड वाला पार्ट, और खिलजी ने ब्रोकन कर दिया था। अलेक्जेंडर 1880 में कॉपी कर दिया। ये एक्चुअल है, वो कॉपी है। दुनिया इसको अशोका द्वार के नाम से जानते हैं महाबोधि टेम्पल में। और ये जो गौतम बुद्ध का फुटप्रिंट्स देख रहे हैं, सम्राट अशोक राजा ने बनाए हैं। 2300 ईयर्स ओल्ड है। अशोक ने इसको इमेजिन करके बनाया है, इमेजिन। ये सर हिंदू टेम्पल यहाँ पे हो जाती है। हिंदू टेम्पल जो शिवलिंग आपका है 1000 ईयर्स ओल्ड है। ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने बनाए हैं। 1000 ईयर्स ओल्ड हो जाता है दादा। ये बोधि ट्री है नदाड़ा, यहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। बोधि ट्री का अर्थ होता है, बोधि का मतलब होता है ज्ञान, ट्री का अर्थ होता है पेड़, ज्ञान का पेड़ है। इस पेड़ के नीचे में आज से लगभग उनको 6 सेंचुरी BC में 2600 ईयर्स पहले यहाँ पे वो बैठकर ज्ञान की प्राप्ति हासिल कर लिए थे। बैसाख पूर्णिमा की रात में, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, बुद्ध बन गए थे। उसके बाद में बुद्ध के चले जाने के बाद 300 ईयर्स बाद 3 सेंचुरी BC में अशोक आया और इस बोधि ट्री को 3 बार काट दिया गया सर। पहला जो काटा गया, सम्राट अशोक यहाँ का राजा था, उसकी वाइफ का नाम त्रिशिला देवी था और बौद्ध धर्म नहीं मानती थे। पहला पेड़ को काट दिया। ये बौद्ध रूट से है ना भैया? हाँ। दूसरा ट्री जब इस रूट से निकला, वेस्ट बंगाल का राजा शेषांग आए, हिंदू धर्म का शासक थे, दूसरी बार इस ट्री को काट दिया। तीसरा ट्री निकला, तीसरा ट्री वो आंधी वर्षा से गिर गया सर। लेकिन छोटा सा यहाँ पे एक प्लांट बच गया। सम्राट अशोक का एक बेटा बेटी जो थे, जिनका नाम था महेंद्र और संघमित्र, जिन्होंने बौद्ध धर्म को धर्म प्रचार करने के लिए उस प्लांट को श्रीलंका लेकर गए। बहुत दिनों तक ट्री नहीं रहा। अलेक्जेंडर कनिंघम आए 1880 में,
और फिर श्रीलंका गए, उसका प्लांट लाए यहाँ लगाए। 4th जनरेशन ट्री है, 140 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 3rd वीक यहाँ पे स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पे वो वॉकिंग करना पसंद करते थे। जब यहाँ पे वो वॉकिंग कर रहे थे गौतम बुद्ध ने, तो गौतम बुद्ध जब वॉकिंग करते हैं, जहाँ पे गौतम बुद्ध का पैर पड़ता है तो उनके पैर से फुटप्रिंट से एक लोटस फ्लावर निकल जाता है। और सम्राट अशोक राजा ने उसका मेमोरी में ये छोटे छोटे पत्थर के लोटस पीसेस बना दिए। ये 2300 ईयर्स ओल्ड है। 12th सेंचुरी 5 AD में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने इसको ब्रोकन कर दिए। अलेक्जेंडर केनिंगम ने 1880 में इसको कॉपी कर दिया। ये एक्चुअल है, ये कॉपी है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 3rd वीक यहाँ पे उन्होंने स्पेंड किए थे ज्ञान मिलने के बाद। बाउंड्री देख रहे हैं ना, स्क्वायर बाउंड्री। हाँ। और बाउंड्री के अंडर में एक पेड़ है सर, पेड़ का नाम फॉरेस्ट ट्री है। वहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद वहाँ पे उन्होंने 7 वीक स्पेंड कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। वहाँ पे जब वो मेडिटेशन कर रहे थे तो वहाँ पे 2 बिजनेसमैन गया था। बिजनेसमैन जो था वो म्यांमार से आया था, उसका नाम था तपूसा और बलिका। गौतम बुद्ध को वहाँ पे खाने के लिए राइस और हनी दिया था और गौतम बुद्ध के बदले में देने के लिए कुछ नहीं था। तो गौतम बुद्ध ने उसको 2 मंत्रा टीचिंग किए थे। गौतम बुद्ध वहाँ पे बोले थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, 2 मंत्र। तो बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ होता है कि गौतम बुद्ध के मार्ग को पालन करना। दूसरा मंत्र का अर्थ होता है कि धम्मम शरणम गच्छामि का अर्थ अच्छा कर्म करना। तीसरा मंत्र यहाँ नहीं दिए, तीसरा मंत्र यहाँ से चले गए सारनाथ में, और सारनाथ के पास वाराणसी में उन्होंने गौतम बुद्ध ने बोले संगम शरणम गच्छामि। संघ का अर्थ होता है एक यूनिटी बनाना। और सारनाथ से फिर वो चले गए गोरखपुर के पास, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। वहाँ पे 80 वर्ष की उम्र में, 80 ईयर्स का उम्र में उनका निर्वाण, उनका समाधि हो गया। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 7 वीक इस फॉरेस्ट ट्री का नीचे में स्पेंड किए थे सब। এখানে বুদ্ধদেব 7 দিন তপস্যা করেছিলেন। যে গাছের তলা, এটা হচ্ছে সেই গাছ। हमारे जो टॉप पे फ्लैग लगे हुए, रेलिंग पे फ्लैग, उसके 5 कलर होते हैं, ब्लू, येलो, रेड, वाइट, ऑरेंज, पेंसिल। तो 4th वीक के प्रतीक वो झंडे होते हैं। तो आपको 5 कलर उसके नज़र आते हैं जो गौतम बुद्ध ने प्रिंसिपल बताए हैं पूरे वर्ल्ड को। कि अगर जीवन में आपको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो ये 5 प्रिंसिपल को मेरा मानना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने बोले कि भी जीवन में इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए, और किसी के प्रति बुरा नहीं बोलना चाहिए, मतलब चुगली नहीं करना चाहिए। तो पेंसिल का पालन करना चाहिए। तो 4th वीक के प्रतीक वो झंडे होते हैं इसमें। देखिए ये जो पिलर स्तंभ देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। जो सम्राट अशोक राजा ने इसको बनाया था। ये लगभग आपको 2300 ईयर्स ओल्ड है। अशोक का टाइम में ये 100 फीट का होता था, 100 फीट का होता था। इसके टॉप पे जो एम्बलम बने हुए थे, और 12th सेंचुरी 5 AD में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आकर इस टॉप का एम्बलम को ब्रोकन कर दिया था, इसलिए छोटा हो गया। अभी 15 फीट का है, पहले 100 फीट का था। इसको हम अशोक स्तंभ कहते हैं। यहाँ पे महाबोधि टेम्पल में ये 2300 ईयर्स हो गए। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद 6 वीक यहाँ पे स्पेंड कर रहे थे। जब वो मेडिटेशन में थे तो यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत जोरों की आंधी, बरसात, तूफान आ गया। उस समय में यहाँ पे एक जंगल का एक नाग वंश का राजा था जिसका नाम था मुचलिंद। नागराज सांपों का राजा थे। वो यहाँ पे निकल कर आते हैं, भगवान बुद्ध को बॉडी को प्रोटेक्ट कर बचाव करते हैं। तो गौतम बुद्ध का यहाँ मेडिटेशन कंप्लीट हुआ। ये सरोवर अलेक्जेंडर केनिंगम ने 1880 में बनाया। इस प्लेस को हम लोग मुचलिंद सरोवर कहते हैं, और इंग्लिश नेम में हम इसको मुचलिंद लेक कहते हैं, और हिंदी नेम में हम लोग मुचलिंद सरोवर कहते हैं। यहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने यहाँ पे 6 वीक यहाँ पे स्पेंड किए थे। तो जन्म कहाँ पे हुआ था? तो नेपाल का लुम्बिनी में हुआ।
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिला, तो ये बोध गया पीपल ट्री, बोधि ट्री का नीचे मिला। गौतम बुद्ध ने पहला टीचिंग देना कहाँ पे चालू किए ज्ञान मिलने के बाद, तो सारनाथ वाराणसी के पास में। और गौतम बुद्ध का निर्वाण कहाँ पे हुआ, तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर कुशीनगर के पास में 80 वर्ष की उम्र में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। तो मैंने यहाँ पे 7 सप्ताह यहाँ पे दिखाएं आप लोगों को, प्लस में मंदिर का बेसिक बताएं, प्लस में गौतम बुद्ध का हिस्ट्री बताएं। तो मैंने आप लोगों को महाबोधि टेम्पल का गाइड कर दिए सर। এইখানে এই জলাশয়ের মাঝখানে খুব সুন্দর একটি বুদ্ধর মূর্তি রাখা আছে। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে 485টা এই রকম স্তূপ আছে। এখানে ভক্তদের মনোকামনা সিদ্ধ হওয়ার পর এই স্তূপগুলো নির্মাণ করতে বলে এইগুলোকে মনোকামনা স্তূপও বলে। এখানে দেওয়ালে বুদ্ধের জীবনের নানা উল্লেখযোগ্য অংশগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে বা মূর্তির মাধ্যমে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই ঘটনাগুলি সবই বুদ্ধের জীবনের থেকে তোলা হয়েছে। এইখানে বুদ্ধের পায়েস খাওয়ার ঘটনাটি দেখানো আছে। আমরা এই দেয়াল চিত্রগুলো দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগিয়ে চলছি। এই চিত্রগুলো দেখতে দেখতে আমরা জেনে নিই এই মহাবোধি টেম্পলে কি কি রেস্ট্রিকশন আছে। এই মন্দিরে কোনো প্রবেশ মূল্য দিতে হয় না। এই মন্দিরে মোবাইল বা ব্লুটুথ যুক্ত কোনো জিনিস এই মন্দিরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া যায় না। বাইরে লকার আছে, সেই লকারে এগুলোকে রাখতে হয়। এই মন্দিরে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়ার জন্য চার্জ দিতে হয়। ছোট ক্যামেরার জন্য 100 টাকা, গোপ্রো বা মাঝারি ক্যামেরার জন্য 300 টাকা, আর বড় ক্যামেরার জন্য 500 টাকা দিতে হয়। কোনো রকম নেশার জিনিস এই মন্দিরে নিয়ে ঢোকা যায় না। এই মন্দিরে ঢোকার সময় 2 বার চেক করা হয় এবং ব্যাগ এবং নানা সামগ্রী স্ক্যান করা হয়। এই মন্দিরের ভেতরে জল বা কোনো জিনিস পাওয়া যায় না। আপনারা জল বাইরে থেকে কিনে আনতে পারবেন। এইখানে প্রতিটি চিত্র কি বিষয়বস্তুর ওপর নির্মিত তা নম্বর দিয়ে এখানে বলা আছে। মন্দিরে প্রবেশ করার সময় ডান দিকে এই স্তূপটি পড়বে। এই স্তূপটি দেখতে খুবই সুন্দর।